अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 10 हम अपने इस क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड करेंगे। पेज नंबर 110 पे जो हमारा क्वेश्चन था कि उर्दू की डेवलपमेंट कैसी हुई, क्यों कर हुई, तो उसका भी जो रिमेनिंग पार्ट है वो आज कंप्लीट करेंगे। अब हमारा है कि बिगनिंग ऑफ द पोइट्री अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न रिसर्च सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह द रूलर ऑफ द गोलकंदा कंपाइल्ड द फर्स्ट दीवान, यानी उन्होंने अपना पहला दीवान लिखा। और दीवान किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ अ पोइट्री। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि रिसर्च सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ही वो पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले पोइट्री इसमें की। जिसने प्रॉपर दीवान इस पर लिखा। द दक्कन पोइट Wali Dakhni is included in the early poets of the Urdu. The poets of the Delhi school was widened the scope of the Urdu literature include Mirza Muhammad Rafi, Sauda, Mir Taqi Mir and Khwaja Mir Dard. Besides Delhi and the Deccan, popularity of the Urdu spread to the status of the Oud and Lucknow are along with the ghazal collection of couplets. गज़ल किसे कहते हैं? जिसमें इश्किया शायरी ज़्यादा होती है। द आर्ट ऑफ द मर्सिया टेलिंग एलेगी थ्राइव्ड एज वेल, यानी मर्सिया के जो सेंस थी वो भी साथ साथ इसमें आना शुरू हो गई। उर्दू वॉज ब्लेस्ड विद द पोइट्स लाइक द अनीस एंड द बीर. In the early decades of the 19th century, there was a great development in the nazm thematic poem during writing. ये नज़म की जो राइटिंग है जिसमें हमद नात और किसी भी और सीरियस मौजू पे लिखी जा सकती है। तो 19th सेंचुरी में इसका बाकायदा आगाज़ हुआ। ड्यूरिंग दिस टाइम द इस्टीम पॉइंट्स लाइक द ज़ौक़ मिर्ज़ा गालिब एंड द बहादुर शाह ज़फ़र वर born. Along with the ghazal, Mirza Ghalib prose is an important treasure of Urdu literature. In this age, Maulana Hali wrote the Musaddas, a poem of the 6-line units, and shocked the whole nation to make them realize their great heritage. After this, the son of the philosophy and poetry of the Allama Iqbal, poet of East, भी इनको कहा जाता है रोज़, through his poetry he tried to convince the Muslims of the South Asia that they were the inheritors of an esteemed culture. बहुत बाइज़्ज़त कल्चर से उनका ताल्लुक़ है, cultural, civil and ideological inheritance. Allama Iqbal wrote his poetry in Urdu and Persian both. इन दोनों लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया. His poetry was so popular amongst the people that some persons had even memorized his lengthy poems. After Allama Iqbal, under the influence of the modern literature, a progressive movement started in Urdu literature. The role of prose writers in the development of Urdu. नसर निगारी कहाँ से शुरू हुई थी, तो इसकी डेवलपमेंट के बारे में बात होगी. After the 1857 War of Independence, there was a prominent change in the political and social conditions. This led to the new direction being taken by the creative Urdu literature. Owing to the Aligarh movement starting by Sir Syed Ahmad Khan, along with the Muslim social development, the prose of the Urdu literature developed prominently as well. Sir Syed and his contemporaries experimented with the Urdu nazm and prose and introduced Urdu in new form. In this age, the nation's pain and feelings were presented collectively. At the same time, Maulana Shibli presented Islamic history in a new manner. During the struggle of the independence and after the creation of Pakistan, there was an atmosphere of freedom and confidence in the development of Urdu literature. Different authors wrote prominent work in their form of literature. The form worth mentioning include the research and criticism, poetry, novel writing, drama writing and the story writing. तो स्टूडेंट ये हमने पढ़ी उर्दू के हवाले से कैसे कैसे उसकी डेवलपमेंट होती रही. तो फिर हमने पोइट्री का भी देखा और उसकी प्रोज राइटर्स की भी. और स्टूडेंट हमने ये भी देखा कि 19th सेंचुरी में स्पेशल जो है वो नज़म की तरफ तवज्जो दिलाई गई. और इसमें जो मकामी इलाकों के लोगों के मसाइल थे, जैसे कि अंग्रेज़ों का मुसलमानों से उनकी हुकूमत को छीन लेना, इसके बाद के जो मसाइल दरपेश हुए, तो काफ़ी हमारे पास उर्दू राइटर्स थे, यानी जो पोइट्री करने वाले थे. जैसे अल्लामा इकबाल का नाम बहुत मशहूर है. तो उन्होंने मुसलमानों को एहसास दिलाया कि आप किस
मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी रिवायात क्या हैं, ताकि क्योंकि मुसलमान अपनी इन चीज़ों में गफलत बरतने लग गए थे और उनको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की कि उनके अंदर यूनिटी पैदा हो। तो स्टूडेंट इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द उर्दू, पंजाबी एंड द सिंधी लैंग्वेजेस। तो स्टूडेंट इसको हम स्टेजेस में देख चुके हैं कि उर्दू डेवलपमेंट कैसी रही, कैसी डेवलप होती रही। इसका स्पेशली जो पेज नंबर 109 पे हमने पढ़ा था। तो स्टूडेंट आपने ड्यूरेटिव डेवलपमेंट ऑफ उर्दू में ये वाले पॉइंट्स दोबारा लिखने हैं, यहाँ तक आप लिखेंगे। इस क्वेश्चन में यहाँ तक ये पॉइंट्स ऐड करते रहेंगे। उसके बाद हम दूसरी लैंग्वेज का भी आपको मार्क करा देते हैं। सेकंड लैंग्वेज हमारे पास है पंजाबी। तो पंजाबी एज एन एंशियंट लैंग्वेज, यानी बहुत पुरानी ज़बान है ऑफ द पंजाब एंड इट लिंक विद द एंशियंट दरबारी और द हरपाई लैंग्वेज। ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल चेंजेस इट हैज़ 6 मेजर एसेट्स का मतलब होता है लहजे, और डिस्टिंक्टिव वे ऑफ प्रोनाउंसिंग अ लैंग्वेज, यानी एक ख़ास तरीका होता है किसी भी लैंग्वेज को प्रोनाउंसिंग, अल्फाज अदा करने का ख़ास तरीका होता है, लहजा होता है उनका। एंड डायलेक्ट्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स के द वोकेबलरी दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप और पीपल, यानी ख़ास इलाके के लोग ख़ास अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ख़ास बोली होती है। तो ये इसके हमारे पास बताया कि 6 मेजर इसके लहजे हैं और इसकी बोली, यानी इस ख़ास इलाके के लोग होते हैं तो उनमें भी 6 जगह पे फ़र्क देखा गया है कि वो किसी चीज़ को एक ख़ास नाम से ही बुलाते हैं। These are the called by different names: शाहपुरी, मझी, चच्ची, सराइकी, धानी and पोटवारी are the some of these. The best is considered to be the मझी accent, यानी सबसे जो बेहतर लहजा समझा जाता है वो मझी accent को माना जाता है, which is then used in Lahore and the areas surrounding it. The knowledge and the literature of Punjabi can be traced to the Mahmud Ghaznavi's times. The topic of the poetry of that time were mysticism, love and romance and patriotism, का जो मतलब होता है हब्बुल वतनी, the love for one's nation. This brings to the mind the name of the Hazrat Baba Farid Ganj Shakkar. Guru Nanak was also a great poet of the Punjabi. Then comes the age of Sultan Bahu, Baba Bulleh Shah and the Khwaja Farid. तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको काफ़ी पंजाबी जो जिसमें पोइट्री करने वाले लोग थे, काफ़ी मशहूर नाम हैं ये, तो ये उनके नाम दिए गए हैं। स्टूडेंट इसकी डेवलपमेंट आगे हम देखेंगे। आफ्टर द 20th century डिफरेंट पीपल डिड इनवैल्यूएबल वर्क इन द नोवेल राइटिंग, ड्रामा राइटिंग, नरेटिव राइटिंग, रिसर्च एंड द क्रिटिसिज्म एंड अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोज। टेलीविजन and radio have served to develop modern drama writing in the department of Punjabi of the University of the Punjab. The courses of MA Punjabi and PhD are taught. नेक्स्ट जो हमारा है लैंग्वेज है कि सिंधी, उसकी डेवलपमेंट की हम खुलासे की तरह करेंगे। सिंधी इज़ एन एंशियंट लैंग्वेज विच इज़ स्पोकन इन द प्रोविंस ऑफ सिंध। जैसे कि हमने कहा कि पंजाब में बोली जाने वाली पंजाबी लैंग्वेज है, उस तरह सिंध के सूबे में बोली जाने वाली सिंधी लैंग्वेज है। As it is related to the Aryai family, it is spoken in the Indus River Valley. दरिया सिंध के जो वादी है वो बहुत ज़्यादा बोला जाता है। And the areas near it, this language has the effect of the following languages. इस पर कौन कौन सी लैंग्वेजेस का असर है? तो ग्रीक है, तुर्किश है, रानी है, दरावारी है, संस्कृत है, अरेबिक, पर्शियन एंड अदर एंशियंट लैंग्वेजेस। इट इज़ रिटन इन अरेबिक स्क्रिप्ट। तो इसका जो रस्मुल ख़त है वो भी अरबी है। आफ्टर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश, इंग्लिश वर्ड्स वर आल्सो इंक्लूडेड इन सिंधी विच इंक्रीज्ड द लिटरेचर एंड वोकैबुलरी रिजर्व्स ऑफ सिंधी। सिंधी इज स्ट्रॉन्गर देन द अदर रीजनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान ड्यू टू इट्स ओल्ड कल्चरल हेरिटेज, यानी जो सबसे पुरानी ज़बान है तो इसको सिंधी में शुमार किया जाता है क्योंकि इसका हेरिटेज बहुत पुराना है, बहुत ज़माना काफ़ी देर से, यानी पंजाबी से भी ज़्यादा है जो सिंधी है वो बहुत काफ़ी अर्से से यूज़ हो रही है। देयर आर मैनी एसेंट ऑफ सिंधी इन द लोअर सैन एंड दैट इज राजस्थानी एरिया, अकची, काटावारी एंड अकदी डायलेक्ट्स आर स्पोकन। तो स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि जो इस एरिया में है उसमें कौन कौन से लहजे से बोले जाते हैं। किच्ची, काटावारी एंड द अकदी डायलेक्ट्स आर यानी बोलियाँ बोली जाती हैं। इन द अदर
Areas that dialects in use are the Kohistani, Saraiki, and the Vacholi. The highly standard of its sentence foremost in the knowledgeable literary and journalist writings. In the whole of the Muslim world, local languages, Sindh is the first language to have a translation of Holy Quran. तो स्टूडेंट्स ये भी इसको ज़्यादा डिस्टिंक्ट कर रही है कि सबसे पहले जो तर्जुमा मुस्लिम दुनिया में किसी भी ज़बान का हुआ है तो वो सिंधी ज़बान थी जिसमें कुरान मजीद का तर्जुमा किया गया. सिंधी वॉज अ डेवलप्ड लैंग्वेज and it was a common practice to read and write in it, and even before the coming of Islam. After the arrival of Islam, Sindhi too had importance along with Arabic. And from 1050 to 1350 special contributions was made to create literary and religious work. यानी अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसकी ट्रेस बैक हम करें तो 1050 से लेकर 1350 इसमें ख़ास तवज्जो दी गई कि इसके लिए जो सिंधी में लिटरेचर है या जो इस्लामिक वर्क है जैसे कि इस तर्जुमा किया गया कुरान पाक का इस सिंधी ज़बान में तो इस पर काफ़ी तवज्जो दी गई थी. दिस इज़ एक्सेप्टेड एज द अर्ली एज ऑफ लिटरेचर इन द सिंधी लैंग्वेज. ड्यूरिंग दिस टाइम the topics written on were patriotism, determination, self-respect and spiritual beliefs. अगर हम poets का देखेंगे तो सूफी poet like the Shah Abdul Latif Bhai and the Sachar Sarmast has enriched Sindhi literature through their exemplary poetry. तो सुनो इसके जो famous poets हैं वो हमारे पास आ रहे हैं कि शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई या सच्चर सरमस्त. इनकी जो पोइट्री है ये आज भी इनके सानी कोई नहीं. दिस एज इज़ कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ सिंधी लिटरेचर. इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे अलॉन्ग विद द पोइट्री इन प्रोज आल्सो अ वेल्थ ऑफ लिटरेचर वाज गैदर्ड ड्यू टू द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ टीचर्स स्कॉलर्स एंड द प्रीचर्स. द एफर्ट्स ऑफ अबुल हसन सिंधी in this respect are prominent. He used the Arabic script for the writing Sindhi to create a new script. स्टूडेंट ये हमारा सवाल आज का जो है वो मुकम्मल हो गया. इसके बाद हम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. तो यहाँ आज के लिए इतना ही. आप अपने बुक पे भी साथ साथ इस तरह मार्क करते रहें और उसको नोट डाउन करते रहें. अल्लाह हाफिज़.